Hello friends, I have come here with my another video and I have taken today the topic of election procedure in India. First of all मैं आपको बताना चाहूँगा आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. So the topics to be discussed today are representative democracy, needs of elections, universal adult franchise that is UAF and different methods of representation. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्शंस होते क्या हैं. इलेक्शंस एक जरिया है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का. एंड a country in a country like India, elections are always taken as a big festival in the political aspects. So first of all, I would like to tell you what is representative democracy. Students, representative democracy simply means कि जब voters, the people who have got that age of 18 or above, have right to vote and they can elect their representative who work for them, who make policies, who make different decisions, who are also involved in policy formulation for these people. Functions of government, decision making, policy formulation are always undertaken by the different representatives that are chosen of different constituencies. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एरियाज, अ पर्टिकुलर एरिया वेयर वोट्स आर कास्टेड बाय डिफरेंट वोटर्स. The Indian Constitution have a deep description of the electoral process in India that have been explained in Chapter 15 of the Indian Constitution under the Articles 324 to 329, in which different aspects like election commission, what are the different conditions, qualifications for contesting election, and what are the conditions under which elections can be cancelled. So these articles do have a detailed description of the election process in India, or I should say electoral setup in India. Another question arises कि हमें elections की जरूरत क्यों है? Why do we need elections? Why is there condition that elections to be conducted at regular interval of time or a fixed period of time? For running of government. रनिंग ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है ताकि जो हमारे वोटर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, वो सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद देश को चलाएंगे. पॉलिसी फॉर्म करी जाती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, ताकि देश की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोशन दी जा सके. एंड अबव ऑल इलेक्शंस आर कंडक्टेड by the government, or I must say that election commission is a responsible organization, that is a central level organization that conducts election at union, state, district level or local level, and public welfare is always given promotion. If any political party does not give these aspects any importance, they are not going to win. अभी हम जानने वाले हैं what is universal adult franchise or suffrage. Universal adult franchise, it is a very common phenomenon that is known to almost every Indian. Right to vote for every person who has got the age of 18 years or above. It was 21 years before December 1988 जब 61st अमेंडमेंट के थ्रू इसकी एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया. इट शोज एज घटाने का एक फायदा जरूर हुआ हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर. द नंबर ऑफ वोटर्स आर कास्टिंग देयर वोट्स इन अ बिग नंबर. आर्टिकल 326 सेज इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब है लोकसभा के सारे मेंबर और राज्यसभा के सारे मेंबर, सारे के सारे का इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर ही होता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रमोट्स sense of equality among the voters, among the citizen of the country, as they feel, क्योंकि उनको लगता है कि सबको without any discrimination right to vote दिया गया है और वो अपने लिए अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी बेस पर हो जो उनके लिए काम करेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो हमेशा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रमोशन देता है. इसका मतलब है देयर हैज नेवर बीन एनी साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, और सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट टू वोट प्रोवाइड किया जाता है.
इट ऑल्सो इंक्रीजेज अ सेंस ऑफ डिग्निटी अमंग सिटीजन्स और रिस्पेक्ट। इनसे इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू ही लोगों को यानी कि सिटीजन्स को फील होता है कि उनके लिए एक डिग्निटी है, गवर्नमेंट हैज डन समथिंग फॉर देम विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ इक्वालिटी। इससे ये जितने भी वोटर्स होते हैं वो विदाउट फियर कोशिश करते हैं कि वो सबको अपने अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को वोट करें और उसको इलेक्ट करें ताकि वो उनके लिए पब्लिक वेलफेयर को प्रमोशन दे सके। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। Minorities are those communities or sections of people who are very less in number, like Muslims, Sikhs, Jains, Parsis in India are always taken as minorities. तो राइट टू वोट उनको एक मौका देता है अपने पसंदीदा या अपने पर्टिकुलर किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का जो इनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बना सके ताकि इनको भी प्रमोशन का चांस मिल सके। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक राइट है, वोटर्स के हाथ में एक टूल है जिससे वो रिप्रेजेंटेटिव के को पर नकल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो चाहें तो उस रिप्रेजेंटेटिव को, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पर्सनालिटी उनके लिए पब्लिक वेलफेयर को प्रमोशन देता है, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करता है, तो वो उसको दोबारा इलेक्ट करेंगे। अदरवाइज इस राइट के थ्रू वो उसको दोबारा पॉलिटिकल फील्ड में एंट्री नहीं दे सकेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, हु कैन नॉट वोट। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा हमें पता लग गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक लीगल आइडेंटिटी है लोगों के हाथ में, वोटर्स के हाथ में, ताकि वो अपने मन पसंद रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके। बट हियर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन नॉट वोट एट ऑल और इवन दे आर नॉट अलाउड टू वोट, लाइक माइनर्स हु हैव नॉट गॉट द एज ऑफ 18 ईयर्स, एसेंट्रिक जो इंसेन होते हैं, पागल होते हैं, सनकी होते हैं, उनको वोट का कोई अधिकार नहीं होता। बैंकरप्ट, द पीपल हु आर बैंकरप्ट, जो कर्जे में डूबे हुए होते हैं। हार्डकोर क्रिमिनल्स, दे आर नेवर अलाउड टू वोट, क्योंकि ये कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के जो कभी भी एक सही डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते। So our next topic is what are the different methods of representation in the election processes in India. So these methods can be divided into two parts. पहला मेथड है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है, एक सिंपल किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करना। तो इस मेथड के अंदर होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी एरियाज वेयर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। जिसका मतलब क्या होता है कि इस एरिया के अंदर रहने वाले जितने भी वोटर्स होते हैं वो अपनी अपनी इच्छा से अपने लाइक्ड कैंडिडेट को वोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनके लिए चुना जाए, इलेक्ट किया जाए, ताकि वो उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज को प्रमोट कर सके। ये इलेक्शन सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट मेथड माना गया है, जिसके अंदर पूरे कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, जो कि इसको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है इलेक्शन कमीशन के लिए। This method promotes sense of unity. Faith of voters are always kept, and it is one of the simplest methods of election procedures or the representations of elections in India. Faith of voters कैसे मेंटेन होता है, क्योंकि वोटर्स को लगता है कि उनका जो पसंदीदा कैंडिडेट है या पर्टिकुलर पार्टी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, he or she is going to be elected from their particular area and he or she will work for them. The second method of representation is functional representation. Functional का मतलब होता है the activity which is related with any particular task, any particular profession. तो इसका मतलब होता है to divide different areas based on different professions. इसका करने का मतलब और इसको प्रमोशन देने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में और थ्रू आउट द नेशन हम ऐसे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मेथड अपनाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस को प्रमोट देते हैं, प्रमोशन किया जाता है उसमें। डिफरेंट पॉलिसीज आर मेड फॉर देम सो दैट डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड and more growth and development could be achieved for the particular area, for the whole nation, which is going to be very fruitful for them. Next, very difficult to implement, पर एक बात ध्यान देने योग्य है, बहुत जरूरी है बात देने, इस मेथड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोफेशन बेस के ऊपर काम करने लग गए
प्रोफेशनल बेस पर रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव्स कलेक्ट करने लगे, तो भारत के डिफरेंट सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज, रिलीजन्स, दे आर गोइंग टू बी इग्नोर्ड, बिकॉज भारत के अंदर आमतौर पर जो प्रोफेशन है लेबर क्लास में आता है, बिकॉज इंडिया इज इट्स नॉट अ कंट्री वेयर लिटरेसी रेट इज टू मच हाई। तो भारत के इलेक्शन सिस्टम को यही सेटअप करना होता है कि वो ज्यादातर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोशन देती है, क्योंकि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंप्लीमेंट करना इट्स नॉट इजी। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन में प्रमोट conflicts in different parts of the country, in different people, among different people who belong to different professions. It may cause loss of national unity, which is going to be very harmful for the whole country. अगर क्योंकि देश के अंदर नेशनल यूनिटी नहीं होगी तो हम देश के लिए एकजुट होकर काम नहीं कर पाएंगे, which is going to be very harmful for the overall GDP of the country. Now, it becomes very important to know what are the different methods of election that are being implemented, that have been implemented in India since a long time. तो उसमें से सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसा कि नाम क्लियर करता है कि इसके अंदर देयर इज ए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इट मींस कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं और अपने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी इच्छा से इलेक्ट करते हैं। The members of Lok Sabha and Rajya Sabha in India are elected by the direct method like PM, CM, MLA and different at local level also. अब यहाँ जानना ये भी जरूरी होता है कि क्या डायरेक्ट मेथड दुनिया के किसी और देश में भी अपनाया जाता है? यस, इन अ कंट्री लाइक द डेवलप्ड नेशंस लाइक यूके एंड यूएसए, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स भी यूके के अंदर इसी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और यूएसए जैसी नंबर 1 डेवलप्ड नेशन के अंदर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी डायरेक्ट मेथड से इलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि डायरेक्ट मेथड क्या सच्ची में, क्या रियलिटी के अंदर एक सही रिप्रेजेंटेशन देता है इलेक्शन मेथड को, एज इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है लोगों की सरकार बनने के लिए लोगों का अपनी इच्छा से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि सिर्फ डायरेक्ट मेथड के अंदर ही पॉसिबल है। इक्वालिटी, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग डिफरेंट वोटर्स, क्योंकि उनको लगता है दे हैव बीन गिवन द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी क्लास डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। इट ऑल्सो क्रिएट्स और इंक्रीजेज अ सेंस ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट अमंग वोटर्स, क्योंकि जब तक वोटर्स को ये एहसास नहीं होता कि दे आर ट्रीटेड ऑन इक्वल बेसिस और उन सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के राइट टू वोट दिया गया है, पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, उनकी डायरेक्ट मेथड के अंदर इंपॉर्टेंस क्लियर कट झलकती है डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर। दिस इज द कॉज डायरेक्ट मेथड हैज ऑलवेज बीन अ वेरी पॉपुलर मेथड सिंस अ लॉन्ग टाइम इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या डायरेक्ट मेथड किसी तरह से अपोजिट वे भी काम करता है? यस, इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। It is clear with that following points that it may bring rise in the corruptive activities like, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर जब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे मे ट्राई टू विन द वोटर्स विद द हेल्प ऑफ मनी एंड मसल पावर। दे कैन प्रेशराइज देम टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी। इसी वजह से भारत जैसे देशों के अंदर जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर लगातार इलेक्शन ड्यूरेशंस में बहुत ज्यादा करप्टिव एक्टिविटीज में राइज पाया गया, जिसकी वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट कई बार नहीं जीत पाते हैं, और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं या नेपोटिज्म जैसे सिस्टम को प्रमोशन मिली है भारत जैसे देशों में। मोर एक्सपेंसिव, डायरेक्ट मेथड के अंदर जहां लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली होता है, वहां पर ये एक एक्सपेंसिव मेथड माना गया है, जिसके अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पैसा लगता है इलेक्शन जीतने के लिए। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर विनिंग द इलेक्शंस, एंड इट मे ऑल्सो ब्रिंग सम कन्फ्लिक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, अमंग डिफरेंट वोटर्स, अमंग डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ कहना ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से कि डायरेक्ट मेथड जहां एक तरफ लोगों की पार्टिसिपेशन को इलेक्शन सिस्टम के अंदर प्रमोशन देता है, वहीं दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रखता है।
So now we are going to take another method of election in India, that is indirect method. जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस मेथड के अंदर देयर इज जनरली नो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, नो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द पीपल लाइक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब है हाई रैंकिंग ऑफिशियल जॉब्स के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होती, दे लैक इन अवेयरनेस, उनको बिल्कुल नहीं मालूम होता कि हु इज गोइंग टू बी इलेक्टेड for these jobs, as only the members of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, and the members of state legislative assemblies are only entitled to cast their votes for the election of president and vice president in India. It is a very strange condition because the indirect method is a very unfamiliar method to the Indian constituency, but for the post of president and vice president this method has been used and it has been mentioned in the Indian constitution. अब जानना ही जरूरी हो जाता है कि इनडायरेक्ट मेथड जो इलेक्शन का मेथड है उसके क्या फायदे हैं, क्या फीचर्स हैं। सम ऑफ द फीचर्स आर एज गिवन बिलो, लाइक इट इज लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू अदर मेथड लाइक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर जहां सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे कैंडिडेट दे ट्राई टू विन द इलेक्शन एट एनी कॉस्ट, they spend a huge amount of money for winning the elections, but indirect method के अंदर president और vice president की job के लिए there is amount which is spent is very very small, so इसलिए कहा जाता है कि ये method less expensive होता है in comparison to direct method। और दूसरी बात important क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर peaceful election conduct किए जाते हैं rather than making rumors, making attempts, वर्बल अटैक्स ऑन अदर पार्टीज। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता और इलेक्शन बहुत पीसफुली कंडक्ट किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो पार्टी कंपटीशन, क्योंकि इसके अंदर पार्टी या पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं होता। इसके अंदर कोई भी कैंडिडेट जो कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की जॉब के लिए नॉमिनेट होने वाला है, उसके जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर वही उनको वोट करते हैं, तो इनके अंदर कोई पार्टी कंपटीशन कहीं किसी भी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि इनडायरेक्ट मेथड जो है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जिसका एग्जांपल हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1970s की डिकेड में दिया, व्हेन शी प्रमोटेड द कैंडिडेट वीवी गिरी एंड आस्क्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू वोट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसाइंस। जबकि जो एक बहुत पॉपुलर कैंडिडेट थे उस जमाने के, जिनका नाम था एन संजीवा रेड्डी, नीलिमा संजीवा रेड्डी, जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट थे, बट शी बीइंग द रूलर ऑफ द कंट्री, शी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आस्क्ड द मेंबर्स टू वोट फॉर वीवी गिरी, व्हिच वाज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। यहाँ पर एक बात और है कि इस मेथड के अंदर करप्टिव एक्टिविटीज के चांस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी और पर्टिकुलरली रूलिंग पार्टी यही चाहेगी कि उन्हीं का कैंडिडेट इस हाई रैंकिंग ऑफिशियल जॉब के लिए भी चुना जाए, क्योंकि उस चीज का फायदा उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस मेथड के अंदर जो जनरल पब्लिक होती है दे लैक इन अवेयरनेस इन पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको कभी भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। रादर दे आर मच मोर concerned about who is going to be the PM of the country, who is going to about the head of the planning commission, financial commission, but वो कभी भी इनके लिए इतने कंसर्न नहीं होते। ये सारी चीजें एक तरफ बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ इन दो पोस्ट के लिए पॉपुलर रहा है, अदरवाइज भारत जैसे मल्टी पार्टी सेटअप के अंदर इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट रूलर्स यानी कि रियल रूलर्स के लिए, जो रियल हमारे हेड होते हैं गवर्नमेंट के लिए लाइक PM, उनके लिए कभी भी सुटेबल नहीं हो सकता।